Please be seated, guys. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful, I welcome you all to the today's seminar. Before proceeding to the seminar, I would like to call Muhammad Safa to come to the stage and recite a few verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Jazakallah. Respected faculty members and dear students, welcome to today's seminar on the role of ethics, accountability, and leadership in modern tech university. In a world driven by AI, cloud, data, and automation, technical skills alone are no longer enough. Now the real question is, who leads with integrity? Who takes responsibility when systems impact millions? Who stands firm on ethics when pressure rises? Today's session is not about technology. It's about character, it's about responsibility, and it is about the leadership that shapes the future. And we are honored to have someone whose journey reflects exactly that. From starting as a teaching assistant at FAST to acing the leading flagship internship programs in summers for PDCL and UPhone. From becoming one of the first students in getting a job at Telenor Microfinance Bank to leading the website branding and EasyPesa, this during his bachelor's degree, to becoming the youngest value champion of the year at Teradata, for upholding the highest ethical standards to leading multi-stakeholder Teradata projects in America, EMEA, and APJ region, to mentor 700 plus associates in Teradata on cloud leading technologies. His journey proves that leadership is not defined by age but by mindset. He is not just a consultant,
He is not just a 10x certified professional, he is a leader built on purpose, discipline, excellence, and integrity. Please give him a big round of applause for joining and giving a warm welcome to Mr. Muhammad Hassan Najam. Sir, the stage is yours. Thank you very much, Ahmed, for the wonderful introduction. ये सब बातें मुझे पता है जो आपने मेरे बारे में बोली अभी. Thank you, buddy. So whatever this gentleman told me about me is true, but that's not a good career path to follow. I'm of the same age as you guys are, so you can ask me nasty questions. I will not mind during the session. So today's session is all about the role of ethics, accountability, and leadership in the modern tech industry. So before we formally begin, I would like to extend my wholehearted thanks to FAST University. It's always a celebration of FAST when they invite their own graduates, their own alumni to share their real world experiences across all the years they have worked in the industry. So a couple of years back, I was sitting at the same place as you guys are, arranging the seminars, hustling around, thinking about the future. Is it going to be programming? How the future is going to look like? So I'll start today's seminar with a quotation that technical skills, they can help you land a job. They can help you get hired. They can help you ace your interviews. But your ethics, your integrity, your accountability, and ultimately your leadership skills, they are the one that will pave your career in the longer run. Moving forward towards the next slide, we have the agenda for today. So we'll start with an introduction. I'll go into some more details about what I have been doing, what I used to do at FAST, what I'm currently doing at Teradata, what are my interests. Then we will talk about ethics, accountability, leadership, the modern tech industry, how the tech industry is evolving, and the question answer sessions we will have. Can you please close the door? Okay. So this is in a nutshell an overview of what I have been doing all along for the past 10 years, where I was linked with academia as well as with industry. So currently, I'm working with Teradata as a senior lead consultant. My expertise lie in the ETL side, the DBA side, the data warehousing side. I must know, like in CS, I believe you guys all from the cybersecurity department? Yes. Okay. So in CS, we used to have a course, data warehousing. I'm not sure if it is offered in cybersecurity or not. It was an elective at our time back in, like I was from batch 2015. So that is one of the course that builds the foundation and basis for all the modern tech industries we are operating right now. Because right now data is the new oil. Moving forward, during my journey of 10 years, I was privileged enough to work with a lot of multinational organizations. As Ahmed mentioned, I started here in FAST as a teaching assistant. I used to teach calculus and network security, interestingly, to my own batch. Because the dilemma of my courses was very, very different. Because I used to be a failure at the start of my graduation journey. I'll come to that point as well. I'll come to that CGPA part as well, especially for the people who are sitting in the front. Now, if we talk about the achievements and contributions, so there are a couple of good things which I like to mention. Mainly the high billability utilization. I believe this is the word. Does anybody know what does billability mean? Any volunteer? What is meant by billability? Okay, that's a literal definition. That's just a translation. Okay, I'll tell you. In real world, what happens is when you join an organization,
the good organizations, they don't have any attendance system. कि आप आए हैं और आपने अंगूठा लगाया और आपकी हाजिरी हो गई है. आप पाकिस्तान की मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, वहां पर अभी भी यही कल्चर होगा कि जी 9 बजे आपने ऑफिस में रिपोर्टिंग करनी है, 9:01 होगा, you will be marked as late. That is where you define the ethics, and that is where the accountability part comes to play. Now, what is billability? In leading organizations, just like Teradata, Accenture, Microsoft, Google, the FANG, the Fortune 500 companies, when you get hired in a company, you ultimately get onboarded on a project. There are multiple clients, multiple customers. आप किसी न किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर ऑनबोर्ड हो जाते हैं. उसके ऊपर you get to have the hours जो लॉक होते हैं, वो hours की बेसिस के ऊपर the client or the customer gets charged. हफ्ते के यूजुअली आपने 35 से 40 घंटे पूरे करने होते हैं, उसको कहते हैं billability. And if you are maintaining like above the 90% of the billability as per the company has set the standard, वो in itself सबसे बड़ी achievement है आपके लिए. So make sure whenever you graduate, this is one of the key takeaways, that you need to ensure that you are billable on a project. Going forward, there are a lot of cloud migration projects. We made a lot of delivery dashboards. We learned a lot about what is effective leadership and mentoring. What is project governance? Governance का शायद आप लोगों में से किसी ने वर्ड सुना हो. Governance frameworks होते हैं. For you guys who will be graduating in 2 to 3 months, I believe, by May, June, I believe. अगर किसी की डिग्री लेट नहीं है तो तब टाइम पे, I believe. तो उनके लिए जो गवर्नेंस का वर्ड है, that is going to be a very buzz word. I'll come on this part as well. Skills and expertise I've already shared. Future goals क्या हैं? Since I'm from the data warehousing background, and data warehousing is not just a small database. It's a database like containing petabytes of data. Like one of the organizations for which I work, one of the clients, they had more than 200 terabytes of data, telecom data, which we had to migrate from one system to another system. Another customer on which I worked was an EMEA client, and they had 180 plus terabytes of data. And obviously, with the passage of time, हर गुजरते वक्त के साथ उसके अपने challenges, उसके अपनी मुश्किलात भी आती हैं. And data आपको पता ही है कि it is the new oil, and what level of challenges data has, you have no idea. You get to know every day कि आज फलां database compromise होगी, आज फलां data leak हो गया. So data has its own challenges, the quality of data, the volume of data, the veracity of data. The people who have interest in the big data side, you can go and Google the V's of the data, the 4 V's, the 5 V's. They'll get to know what is meant by the volume and the veracity. Opportunities, obviously, AI has taken over the world. AI is the future. AI is the thing which is going to improve a lot of our lives, but only for those who use AI as a leverage tool, not as a tool just to अपनी सब चीजें AI को दे दी और खुद भूल गए. And further opportunities, obviously, when you are working for an organization, when you are working for a company, when you are working for a customer की कोशिश होती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचें. If you are working on the customer side, but if you are working on the vendor side, let's say if I am working at the Teradata side, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज बेचूं. So it's a trade-off between revenue generation and business growth. Going forward, I'll quickly walk through these slides. Over the past 6 years of my journey at Teradata, I was lucky enough to work on multiple projects, and they were very successful projects, from leading multiple cloud migrations to DDWH development and stabilizing all the operations. I got customer recognition from the senior management of Teradata, from the C-level management of Teradata. Then comes your technical acumen and certifications. They are really important to succeed in this modern era. आज से अगर हम लोग 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं, तो एक बूम आया था कि जी मास्टर्स कर लें, MBA कर लें,
बहुत स्कोप है, अभी भी है, लेकिन वो बंदा जिसने साल का एक एमबीए किया है या साल का एक मास्टर्स प्रोग्राम किया है वर्सेस वो बंदा जिसने एक साल में AWS को भी टच किया है, Azure को भी टच किया है, GCP को भी टच किया है, डेटा मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशंस को भी टच किया है, दैट विल बी मोर वैल्यूएबल इन द मार्केट एज कंपेयर टू द पर्सन जो एक साल सिर्फ एक टॉपिक पे काम करता है, बिकॉज उसके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स हैं. Then we talk about mentorship and enablement contributors. We run a program at Teradata. Back in 2021, we designed a program. We were spanned across all the GDC centers of all over the world. We had India with us, we had Japan with us, we had Manila, we had Prague and other Asian regions. Where we designed all the helping guides. अभी अगर मैं आप में से किसी बच्चे से पूछूं यार I want you to get certified in let's say AWS, so how much time do you require? उसके पास कोई जवाब नहीं होगा. शायद उसको 1 महीना लग जाए, शायद उसको 3 महीने लग जाए, शायद उसको साल लग जाए. Reason, he does not have a proper guide with him. He does not have a proper learning path with him or with her. So मुझे अच्छी तरह याद है कि 2022 में रमजान था, अभी इंशाल्लाह रमजान आने वाला है. So me and my team, my boss, my line manager, we used to sit together. We used to finalize. हम खुद पढ़ते थे, सारे मटेरियल्स को पढ़ते थे, फिर उसको श्रिंक करते 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 हम उसको 20 से 30 स्लाइड्स में ले आए. एक पूरी जर्नी बनाई कि कैसे आप जो है विद इन अ मंथ और 2 अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं. दैट वाज वन ऑफ द वेज, दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप कि यू गिव बैक टू द सोसाइटी. अब उस पे अगर मैं बात करूं, आई वाज नॉट बिलेबल, दैट वाज एन इंटरनल ड्राइव विद इन द कंपनी. तो जब उन तमाम बंदों को वो गाइड्स मिल गई तो आवर सर्टिफिकेशन सक्सेस रेट वाज 17% एट दैट टाइम. That got boosted to 100% within a span of 3 months, which was the biggest success for GDC Pakistan. And in the end, leadership development and contributors, ये with the passage of time साथ साथ चलती जाती हैं. तो अगर इन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा सा sum up करूं, there is a reason why I'm building up this story and telling you all these details, because these are very, very personal details of mine. 2021, I landed in Teradata. We won the annual project award for exceptional performance. We did the migration. So that was a year where I was building ethics, quality delivery, and consistent recognition. अब ये ethics कैसे build होती है, quality delivery क्या होती है, constant recognition क्या होती है, मैं छोटी सी example दूंगा. आप लोगों का एक clash आ जाता है ना कोर्स में, आप आमिर साहब को या तुफैल साहब को इतनी लंबी ईमेल लिख देते हैं, सर मेरा ये हो जाएगा, मैं ऐसे हो जाएगा, मेरी डिग्री लेट हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं बनेगा. दैट इज वेयर दिस रोल कम्स, क्वालिटी डिलीवरी. योर ईमेल, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, इफ आई आस्क एनी वॉलंटियर टू कम अप एंड हेल्प मी कंपोज एन a strategic email of 2 to 3 lines, no one would be able to do that. Everyone will either open ChatGPT कि मुझे ईमेल लिख दो, या Gemini खोल देगा, या वो लंबा सा एक इमोशनल पैराग्राफ लिख देगा, because no one is going to read that email. Since उनका काम है वो पढ़ते हैं. हमें जब इस तरह की ईमेल्स आती हैं हम लोग नहीं पढ़ते, मैं एटलीस्ट नहीं पढ़ता. An email should be the one which can fit on your mobile screen, because not every time I'm going to carry my laptop. with different projects हैं, different clients हैं, different time zones हैं, तो मैं हर वक्त तो लैपटॉप के आगे नहीं बैठ सकता. लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज है जो हर वक्त मेरे पास रहेगी. So this is the thing which one of my mentors used to tell me, because I was also in the same dilemma. मैं भी लंबी emails करता था, लंबी तकरीरें करता था. No one is going to read that. Your email should fit on a mobile screen. That's it. छोटी बात, to the point बात, concise बात. 2022 year आता है. I got fortunate enough. I was on 3 parallel projects. एक internal project था, 2 projects side by side चल रहे थे. It was the most turning point year for me in Teradata,
जहां पर हमारा एक प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं ऑन अ ग्लोबल लेवल, इट इज कॉल्ड एलाइशिप, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस्लाम भी हमें इसी चीज की जो है वो दर्स देता है। तो उसके ऊपर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एथनिसिटी, दे कम टुगेदर ऑन द सेम पेज, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड एक पूरा प्रोग्राम रन होता है। In 2022, that was one of the years where I really started to work or dwell into the leadership के leadership कैसे काम करती है, जो टॉप पे बंदे बैठे हैं वो कैसे काम करते हैं, because only one guy is going to become either the CEO or the managing director or the president. हर बंदा नहीं बनेगा, ठीक है? तो if you want to, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस लेवल तक जाऊं, then you need to come into that person's shoes. Then you will understand that सिर्फ कोडिंग नहीं है, सिर्फ आपने नेटवर्क से जो है वो पैकेट्स इंस्पेक्ट नहीं करने। टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप इज फार अवे देन व्हाटएवर यू आर राइटिंग एट द बैक एंड और एट द फ्रंट एंड। नाउ कम्स 2023 एंड 2024। द गुड पार्ट अंडर दिस इयर्स वाज कि हमारी साथ ट्रेनिंग्स होती हैं। व्हेन यू एंटर टेराडेटा की सबसे अच्छी चीज ये है, you automatically get enrolled in a university called as Teradata University. वहाँ पर अगर आप courses की बात करें, for external people there is a hell amount of money, they charge in dollars, but for all the employees, the FTEs, the full-time employees, that's free. So that's a full world of anything that you want to study that is available at you at zero cost. वो भी साथ साथ चल रही थी, फिर साथ साथ मेरी अपनी certifications भी चल रही थी। I used to learn myself and then I used to pass on that information to my colleagues, to my center, to my office. So उससे फायदा ये हुआ कि ना सिर्फ मैंने ग्रो किया, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ होल ग्रो किया। तो एक टाइम आया कि जो मेरा स्किल सेट था वही मेरे साथ वाले कुलीग का भी था स्किल सेट। तो अगर आपकी ये सोच है कि मेरा जो है मुकाबला किसी अली के साथ है, किसी अहमद के साथ है, किसी हमजा के साथ है, किसी मरियम के साथ है, किसी नूर के साथ है, तो दिस इज वेरी यू आर रॉन्ग। अगर तो आपकी ये सोच है तो इसको अभी उस सफे को फाड़ दें। द रियल कॉम्पिटिशन, द रियल कंपैटिटर इज योरसेल्फ। आपका खुद से मुकाबला है। अभी आप लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे 3-4 महीनों में, हो सकता है बहुत से लोग एक दूसरे से ना मिलें या वो एक कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक हो जाए, लेकिन आपका जो मुकाबला है वो खुद से है। That how better you have become with each passing day. Moving forward, leadership begins at home. Okay? Any volunteer who can tell me what is leadership, or else I will nominate the person myself. Anyone? Please. आपके ख्याल में क्या है? What is leadership? कुछ भी बता दो। It's an open discussion. What is a leader? This one. Leadership is something जो आप बिल्डिंग कर सकते हैं और जिससे हो सकती है कि आपको द पैसेज ऑफ टाइम चैलेंजेस में से गुजर के बिल्कुल ठीक है, बहुत हद तक जवाब। अब जो आपसे पीछे बैठे हुए थे वो, जी आप। काफी हद तक बात आपकी सही भी है, काफी हद तक बात आपकी गलत भी है। I'll start with a story. It's a very powerful quotation that move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new. इसके पीछे की बड़ा एक डायलेमा है, इसके पीछे बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। When I was working for this seminar last night, I met an old guy. ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, ये आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी क्योंकि मुझे इसने जिंदगी में बहुत काम दिया है। I met an old guy with white hairs. ऐसे बाल तो मेरे भी थोड़े सफेद हो गए हैं, लेकिन उनके पूरे बाल सफेद थे। So he's an old guy. So he asked me कि
कि बेटा आप क्या कर रही हैं, ये क्या काम कर रही हैं, क्या चीज़ बना रही हैं। आई टोल्ड हिम कि जी इस तरह कल सेमिनार है, तो आई हैव टू गो एंड शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑन एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप। तो ही सेड कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ यू कुड शेयर अ फ्यू लेसन्स विद दोज पीपल। मैंने कहा जी जरूर बताएं, बिल्कुल बताएं। वो बैठ गए मेरे पास, उन्होंने वन बाय वन बताना शुरू किया। सबसे पहली चीज थी हार्ड वर्क, मेहनत। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि व्हेन ही वाज इन हिज 20s हाउ ही यूज्ड टू वर्क। He used to play at domestic cricket. Pakistan Army की तरफ से he used to play domestic cricket and he used to go on a lot of counties and तकरीबन सारा यूरोप को फिरे हुए हैं from the Pakistan PCB की तरफ से. But even with that he used to do 2 to 3 jobs just to meet the bread and butter of his house. Later on he got married. अब when you are working in an, जब आप सरकारी इदारे में काम कर रहे होते हैं, you get a lot of opportunities. This is a sad reality, but I will be very open and transparent with all of you. इसी अंधेरे में नहीं मैं रखूंगा. You get a lot of opportunities to, you know, get the things done under the table. I hope you are getting my point, what I'm trying to make. The unnecessary and unfair means of money. I asked him that जब आप इतने तंग थे, आप 3 जॉब्स करते थे, तो आपको कभी कोई किसी ने कहा नहीं कि यार तुम्हें हम एक शॉर्टकट दे देते हैं, तुम ऊपर आ जाओ? He said no. He said जो हार्ड वर्क है ना और जो एथिक्स एंड कमिटमेंट है, they will eventually pay off in one form or in another form. हम असल में ना हर चीज को, हमारी ज़हनियत ऐसी है कि हम हर चीज को लिंक करते हैं फाइनेंसेस के साथ, कि जिस बंदे के पास जितना पैसा है वो बड़ी गाड़ी से उतर है, बड़े घर से उतर है, उतना कामयाब है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसकी लाइफ में और कितने प्रॉब्लम्स हो सकता है वो मेंटली जो है उसको मेंटल पीस ना हो। तो आई आस्क्ड हिम कि क्या आपका कभी दिल नहीं किया? ही सेड नो, देयर आर मल्टीपल वेज बाय व्हिच आई कैन, यू नो, ये चीज लौट के वापस आएगी। बिकॉज ये वो चीज है, आपने कमेटी का वर्ड सुना होगा कि लोग कमेटी डालते हैं, जो पैसों वाली चीज होती है, कि वो डल कमेटी इधर रही है, इस जगह पर रही है, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं और निकलेगा, और वो निकलेगा जरूर, वो देर से जरूर निकलेगा, पर वो निकलेगा जरूर। मैंने कहा ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कहा, सैक्रिफाइसेस फॉर चिल्ड्रन। मुझे आज आप बताएं, माशाल्लाह देयर विल बी लाइक 80-90 पीपल इन दिस रूम, आप लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक आला तरीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं। कभी आप लोगों का इत्तेफाक हो जाने का सिंध वाली साइड पे, जो रिमोट एरियाज हैं, आपको लग पता जाएगा कि वहां पर लाइफ कैसी है। वहां पर पीने का साफ पानी नहीं है। तो ये जो कुछ भी है, ये आपके अपनी जो पेरेंट्स हैं उनके सैक्रिफाइसेस हैं, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो द पॉइंट सैक्रिफाइसेस फॉर चिल्ड्रन, मैंने उनसे पूछा कि ये आपने किस तरह मैनेज किया। I still see that person wearing the same clothes as he used to wear 20-25 years back. Can you imagine? Like this is the height of, कहने के down to earth बंदे की है, एक height है कि he still has those clothes with him, जो आज से 10 से 15 साल पहले भी पहनता था, वो आज भी पहनता है। उसके पास वो हर साल ईद पे जाकर नई जूती नहीं लेता, लेकिन वो बच्चों को लेके देता है। वो ईद पे नए कपड़े नहीं लेता, लेकिन वो बच्चों को लेके देता था। बच्चों की तालीम पे उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और ना ही उसने किसी के साथ कंपैरिजन किया। जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपका किसी अली, अहमद, मरियम, नूर, फातिमा, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, आपका अपनी जात के साथ कंपैरिजन है कि आप हर गुजरते वक्त के साथ, आने वाले कल के साथ खुद को कैसे बेहतर महसूस करते हैं, कैसे बेहतर पाते हैं। तो कंपैरिजंस नहीं करने। मैंने पूछा कि अच्छा आपने ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में की, इसका नतीजा क्या निकला? तो वो ना, उनका चेहरा बड़ा मुस्कुरा गया, हल्के से उनके दांत भी मुझे नजर आए कि जैसे एक
आपका कोई काम फंसा हो ना, आपका क्लैश रिजॉल्व हो जाए किसी कोर्स का, तो आपके चेहरे पे बिल्कुल सुकून आ जाता है कि यार मेरी आराम से मेरा सेमेस्टर निकल जाएगा। या आपको कोई टाइम टेबल ऐसा सेट हो जाए कि हफ्ते में 2 छुट्टियां आ जाए, तो आप लोगों के चेहरे पे जो सुकून होता है, बिकॉज आई एम यूज्ड टू बी ऑन द सेम सीट्स, आई कैन कोरिलेट विद इट। मैंने कहा इसका फायदा क्या हुआ आपको? ही टोल्ड मी इसका फायदा ये हुआ कि मैंने सारी जिंदगी हराम का एक लुकमा नहीं खाया, सारी जिंदगी रिज़्क़ हलाल कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशहाल हूँ, वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। एक बेटी है मेरी, उसने माशाल्लाह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, शी इज एन आर्किटेक्ट एंड राइट नाउ शी इज वर्किंग एज अ लीड फॉर अ मल्टीनेशनल स्कूल इन लाहौर। The other daughter is also a computer science graduate. She is working as a quality software head at one of the leading software companies in Islamabad. And the third person is the one who is standing right in front of you delivering you a lecture. That is none other than my very own father, Muhammad Najam Iqbal, who is one of the greatest mentors of my life. तो जो आपने ये आपने मेरे बालों पे नहीं जाना, ये मैं बुरा करके आया था, तो नाउ आई बॉट माय हेयर बैक। ये लास्ट ईयर की तस्वीर है। तो जिससे हम कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, ये आपके घर से वो चीज स्टार्ट होती है। तो लीडरशिप स्टार्ट्स एट योर ओन होम। हम जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, हम पीएचडी कर लें, हम टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर लें, लेकिन वी कैन नेवर सरपास द एक्सपीरियंसेस, द वैल्यूज आवर पेरेंट्स कैरी। तो अपने पेरेंट्स को आप लोग एंजॉय करें व्हाइल दे आर अलाइव, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे सीखें। कल को आपने भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, आप सब लोगों की शादियां होंगी, बच्चे होंगे, फिर एक लाइफ का ट्रैक बिल्कुल चेंज हो जाता है। Like I got married back in 2024. उससे पहले की लाइफ was very different. उसके बाद वाली लाइफ बड़ी डिफरेंट है। ये with the passage of time, I don't want to go much into the details, लेकिन you'll get to know that how life changes, and आपको ये टाइम याद आएगा। अभी आपको लगता है ना कि जी बड़ी मुश्किल से सेमेस्टर गुजर रहा है आपको, then you will get to know the challenges of life, कि लाइफ कितनी चैलेंजिंग है। और इसको जो खूबसूरत बनाता है ना, वो आपका हम सफर बनाता है। एक बड़ी डीप बात है। गोरा जो है वो 2 चीजें बड़ी देख के करता है। आई एम नॉट गोइंग टू दैट इस्लामिक टच मैं नहीं दूंगा, लेकिन गोरा 2 चीजें बड़ी कमाल की करता है। एक, उसने जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, और एक जहां पर उसने काम करना है। Because 9 to 5 he is going to be at his job, and once he gets at home he is going to be with his partner. अगर जॉब ठीक नहीं होगी, उसकी फ्रस्ट्रेशन पार्टनर पे निकलेगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। और अगर पार्टनर अच्छा नहीं होगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन जॉब पे निकलेगी। इट्स अ साइकिल, इट गोज ऑन। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बेहतरीन हमसफर मिल जाए तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत बन जाती है। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग इट। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज भी कहूंगा, नेवर फॉल इन लव विद अ वुमन और अ कॉर्पोरेट। ये आप शी इज माय वाइफ सिटिंग इन ऑन द फर्स्ट रो। शी इज टू Her name is Noor Fatma. We got married 2 years back. So she's right now working with a startup, and she's directly working with the AI products, AI things. अक्सर मुझे कुछ चीजें पूछनी होती हैं AI से related, तो मैं उससे पूछ रहा होता हूँ। And anyways, going forward, अब थोड़ा सा हम आते हैं डेटा की तरफ। इससे पहले कि हम डेटा की तरफ आए, I can see some people are sleeping. सारों के मुंह पर हो गए। Okay. तो एक छोटा सा क्विज खेलते हैं, ठीक है जी? नेट आ रहा है मास्टर? बस ये बहुत बड़ा मसला होता था मेरे जमाने में भी।
I'm sorry, but I cannot help much in this. Okay, all of you guys have your smartphones with you. Okay, so you can scan this QR, and whatever you think is the right answer, you can simply lock in. Responses are but ये populate नहीं हो रहा. I think the internet is down. आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है. Okay, we'll wait for a minute or so. Okay. And by the way, these are some goodie bags from our organization. So, आप लोग goodie bags में खुश हो गए हैं यार. मैंने इतना ज़्यादा अपनी पर्सनल चीजें बता दी हैं. एंड पे वही वाली बात है कि जलसे में गए, उन्होंने बिरयानी की प्लेट दी तो उन्होंने वोट उधर डाल दिया. लेकिन ये उनको मिलेगा जो कि सो नहीं रहे होंगे, जो कि अटेंटिव रहेंगे और जो मेरे साथ रहेंगे. और ये उनको मिलेगा जो एंड पे मुझे पूरे सेमिनार की समरी देंगे स्टेज पे आके. तो अब अभी से डिसाइड कर लें किसने आना है, कौन नहीं आएगा. डन हो गया, ठीक हो गया. ओके, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिस्पोंडेड. यू सी द डायलेमा. टेक्निकल स्किल्स सबको पता है. कोडिंग 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 कोडिंग, बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट तक आगे करनी है. ओके, अब मैंने ये बात कर दी है तो अब देखना ये वाली चीजें ऊपर जानी शुरू हो जाएंगी. ओके, आई थिंक वी गॉट एन आइडिया. सबसे कम चीज यहाँ पर क्या आ रही है? सर्टिफिकेशंस. देन अदर चले नन ऑफ दीज, एंड देन वी हैव एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, जिसके ऊपर आज पूरा सेमिनार बेस्ड है. उसको किसी ने पूछा ही नहीं है. बंदा थोड़ी शक्ल इस्तेमाल करता है, बंदा वैसे ही इसको जो है ज्यादा वोट डाल देता है. चलो खैर, एनीवेज गुडी बैग्स मिलेंगे यार आपको, बेफिक्र है, बिल्कुल मिलेंगे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टे ऑन योर मोबाइल स्क्रीन्स प्लीज. ओके, so the question is, you are behind a deadline on a client project. Reporting accurate status may create pressure. What would you do? Let's see how you guys respond on it. पहले ने कहा मैं तो नंबर ही जो है ना slightly adjust कर दूंगा. It's good. Report actual status transparently. Okay, I got the idea. Let's go towards the next question. आपने यूनिवर्सिटी में अपने इस 4 years प्रोग्राम में कई इवेंट्स कराए होंगे. NASCON is one of the events जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. उसी को कोरिलेट करके इस सवाल का जवाब दीजिए. मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ. Okay, blame shifting is the answer. Okay. Next question. Do you think leadership requires a formal title? Yes, sir. Yes वाला कौन है? भाई तुम्हें बड़ी बैग नहीं मिला. मैं समरी दूंगा ना सर. चल रहा है, दे दे. अब ये तो आपने मेरी बातों के बाद नो किया ना, वरना सब ने यस ही करना था. Okay, that's fine. I believe. Let's come back to our PowerPoint. Okay, थोड़ा सा हम लोग numbers के साथ play around करेंगे, and then we will talk about the ethical leadership and inspirational leadership. Inspirational leadership कैसे develop करती है ethical leadership में, and how it goes from top to bottom, and I'll give you few tips. As you guys will be graduating, this is the graduating class of 2022, I believe. Okay. So, these 3 topics: consumer decisions, premium pricing, and executive agreement. मेरा ख़वातीन से स्पेसिफिकली ये सवाल है, जितनी ख़वातीन बैठी हैं, क्योंकि 2 सालों में मुझे बहुत से ब्रांड्स के नाम पता चल चुके हैं. हार्डी हो गया, सना सफीनाज हो गया, लाइमलाइट हो गया, बीच ट्री हो गया, मारिया भी हो गया, एंड सो ऑन.
सॉरी स्टैंडर्ड्स ऊपर करें सर। लावा हो गया, ठीक है, कैन यू हेल्प मी प्लीज, सॉरी इस्निक हो गया, बारोक हो गया, a lot of brands are there in the market. So any volunteer from the female side who can give me answer कि आप कौन सा कपड़ा या कौन सा ब्रांड पहनना पसंद करेंगे, anyone, आप बता दें क्यों? ओके, आप भी एथनिक, सेम आंसर, नो डिफरेंस, ओके, सो फायर क्यों? ठीक हो यार, मैंने फीमेल से पूछा, आपने हाथ खड़ा कर दिया। चलो आप बता दो। यू आल्सो, आपको क्या, आप सो रहे थे ना, आपको बॉडी रैक नहीं मिलेगा। किसी ने कहा कि उनकी सेल बड़ी अच्छी है, किसी ने कहा उनके प्रिंट्स बड़े अच्छे हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारे जेब में एक फैक्टर क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर, कि यार ये ब्रांड बड़ा जबरदस्त है। जबरदस्त वाला एक वर्ड होता है, वो जो जबरदस्त है उसकी डेफिनेशन किसी के लिए उसके प्रिंट्स हैं, किसी के लिए उसकी सेल है, किसी के लिए उसका लग्जरी स्टोर है, किसी के लिए उसकी प्राइस है, बिल्कुल प्राइसिंग इज द नेक्स्ट थिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, और किसी के लिए उसकी ओवरऑल मार्केट प्रेजेंस है। व्हेन इट कम्स टू डेटा, कंपनीज भी, I'll take a few names, Salesforce, have you guys heard the name of Salesforce? ServiceNow, very good, बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है। These companies are based on ethics. They never compromise on the quality and integrity of the data. That is why आप जितनी कंपनीज उठा लें, छोटी से बड़ी, सब में सर्विस इंटीग्रेटेड होता है to monitor the live tracking of data and the incoming ticket requests. बुरा नहीं बनाना यार, नाराज भी नहीं होना, आपको बॉडी रैक दे दूंगा मैं, परेशान हो गए। Then we talk about the premium pricing. छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी मार्केट की ले लेते हैं, the car market ले लेते हैं। You will always prefer a top of the line brand with a slightly more amount of payment as compared to the car which is on the base model. The same applies to the data world, where the companies are willing to pay more amount, but they want कि उनका data transparent हो, उनके data leaks ना हो। Everything is available at a single point of business. Single version of truth होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने वो सवाल लिखा था कि आप एक डेडलाइन आपकी आ रही है, आप क्लाइंट प्रोजेक्ट पे आप नंबर्स को क्या करेंगे, तो मोस्टली ने आंसर किया कि हम एक्यूरेट रिपोर्टिंग ही देंगे। दिस इज व्हाट आर द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड देन वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट, द स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर ऑफ टेराडेटा। जो है, आप में से कितने लोग स्नैपचैट यूज करते हैं? सबके हाथ खड़े हो। और किसकी सबसे ज्यादा लर्विश ठीक है? कितने दिनों की? 1500। मैंने कहा 1500 डेज बस। और आप बताओ यार, आप स्टेज पे आ जाओ, बल्कि आ जाओ। I'm serious, we are short on time, you can come on the stage. आ जाओ। नहीं आओ यार, आ जाओ। कॉन्फिडेंस के साथ हो, ऐसे वालेकुम सलाम, आ जाओ। अच्छा जी, हाँ जी, बताएं आप, आपके स्नैपचैट पे कितनी स्ट्रीक है, आप यूज करते हैं? सबूत भी चाहिए। क्या स्ट्रीक है आपकी? बस 2100 means के like 3 years, 4 years, 7 साल 6 years। अच्छा, सारे जाग रहे हैं, मैच कर रहे हैं सारे साथ, ठीक है यार, ये नाराज हो गया। चलो गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार, ये सोचा हुआ है। बॉडी रैक मिलेगा यार, टेंशन नहीं लेनी, मैं दे दूंगा। जो एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट है, स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर्स है। इफ वी टॉक अबाउट टेराडेटा, आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैंने स्नैपचैट का हवाला दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि उस पे यू गाइस मेंटेन अ स्ट्रीक। When it comes to Teradata has maintained a streak of 16 consecutive years for being the most ethical company of the world, one of the most ethical companies of the world. आगे जाके देखेंगे स्लाइड में।
The ethical mindful challenges facing the tech leaders today. Obviously, बात है AI has taken over the world. 41% identify cognitive tasks as highest ethical risks. Data privacy, we've already talked about it. There are a lot of Facebook का डेटा कभी हो जाता है, कभी Instagram का डेटा जो है वो निकल जाता है. You get to see a lot of random and inappropriate content. Even don't put it anywhere. अगर आप Google पे भी जाएं, even जो हमारी अपनी डेटाबेस है नादरा, it also got compromised few years back. वहाँ पर भी डेटा ब्रीचेस हुई. So data breaches everywhere because उस सिस्टम को चलाने वाले तो हम हैं. अब आपको अक्सर कॉल आती है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कॉल करूं, मैं अहमद को कॉल करूं, मैं उसको बताऊं आपका नाम अहमद है, आप जो है वो फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, आपका घर का एड्रेस ये है, आपके अब्बी का नाम ये, आपके अब्बू का, यू विल गेट पैनिक, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दैट इज ओनली अवेलेबल ऑन आवर CNIC कार्ड. तो इस तरह की कॉल्स आती हैं. फिर एक वो कॉल भी आती है, मैं सबा बात कर रही हूँ, मुझे 100 रुपए का लोड भी, तो उसको आपका नंबर कहाँ से मिला? ऑब्वियसली बात है, सिस्टम से ऐसे तो हवा में तो नहीं निकल गया. लाइक क्लाउड इज अ टेक्नोलॉजी. क्लाउड का मतलब ये नहीं कि हवा में डेटा है. कोई ना कोई बंदा जरूर सिस्टम पे बैठा होगा. किसी ना किसी ने, यू गाइस आर मच फेमिलियर विद द CSV फाइल्स, किसी ना किसी ने CSV फाइल जनरेट की होगी, डेटा निकल गया होगा और आगे मार्केटिंग कंपनीज को चला गया होगा. दैट इज वेयर योर एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी कम्स टू प्ले द पार्ट. देन मिस इन्फॉर्मेशन है, ओवरऑल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट के फैक्टर्स हैं, एंड ऑल दैट स्टफ. Now, if I give a flavor of Teradata to you guys, global code of conduct. Teradata has an open culture. On my very first day of Teradata, when I visited their office, I never knew कि मैं जिस बंदे के साथ बैठा हुआ हूँ, he is the center head. तो वहाँ पर एक open culture of communication and the same culture was basically ये वाला जो culture है पाकिस्तान में, वो टेलीनॉर लेके आई थी. बड़ा जबरदस्त कल्चर, आपके साथ आपका CEO बैठा हुआ है, CTO बैठा हुआ है. इधर तो क्लास में सीट फिक्स होती है जी, मैंने इधर ही बैठना है तो मैं इधर ही बैठूंगा, which is a wrong thing. You say okay to openness. So we have a global code of conduct, top to bottom. जो बंदे, जो रूल्स, जो बंदे US में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी वही अप्लाई होंगे जो बंदे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं. Similarly, active board oversight. Some of you guys in some period of time will be pursuing their MBA. उसमें बताया जाता है कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बिठाए जाते हैं. आपको बड़ा अच्छा लगता है ना जी, CEO साहब आए हैं, who is all and all, लेकिन CEO भी किसी ना किसी को जवाबदेह होता है. अगर बोर्ड अलाइन हो जाए तो वो मिनट नहीं लगाएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल के CEO को हटा देगा. एंड देन दे हैव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये वही फलानी सर्टिफिकेशन होगी, फलानी चीज के साथ कंप्लायंट है, फलाना गवर्नेंस फ्रेमवर्क पूरा है. अब इसमें होता क्या है? एम्बेड एथिक्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सबसे अच्छी चीज Teradata की है, वी हैव इनिशिएटिव TD केयर्स, जिसमें अभी आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा. रिसेंटली वी कंक्लूडेड अ ड्राइव जिसमें जितने भी अंडर प्रिविलेजेस बच्चे हैं, जिस टाइम मैंने वो सिंध की एग्जांपल दी थी, they all get a chance to come up. We support them. We have scholarship programs. It's them. मुझे अच्छी तरह याद है कि while I was not back there at that time, कि Agard used to work in our office. उसका बच्चा जो है उसको Teradata ने सारा सपोर्ट किया, उसने तालीम अपनी मुकम्मल की, and he is माशाल्लाह on a very good position in one of the leading banks in Pakistan. I'll not disclose the names as well. Train and empower employees. इसकी भी बात मैंने पहले की थी कि आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, you learn and then you give it back to the society. We have TD University जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ I believe. And then align innovation with responsibility. अब Teradata की चीज बहुत अच्छी है कि the people who are working irrespective of their business shifts. Business shifts क्या होती है? 9 to 5 और maximum 10 to 6 हो जाएगी. लेकिन वो बंदे जो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट टाइम जोन्स को फॉलो कर रहे हैं, दे गेट कॉम्पनसेटेड एक्स्ट्रा. उसको हम लोग कहते हैं ऑफ शिफ्ट्स. वी हैव अ पोर्टल, हम वहां पर अपने आवर्स लॉक करते हैं, दे गेट अप्रूव्ड एंड वो हमारी पेरोल में आ जाते हैं. अब अकाउंटेबिलिटी यहां से स्टार्ट होती है. अब सिंस दैट पोर्टल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द फाइनेंसेस, एनीवन कैन पुट एनी नंबर्स. बाहर जगहों पर यू गेट आवरली पेड. लेकिन since the culture is built on ethics, accountability, responsibility,
whenever the audit happens, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आ जाती हैं, ह्यूमन एरर कैन बी डन, लेकिन अब एक बंदे ने 1 घंटा शिफ्ट पे काम किया वर्सेस एक बंदे ने 10 घंटे शिफ्ट पे काम किया है, तो दैट इज एन एथिकल ब्रीच। अब ये वो जिम्मेदार होगा कि मैंने क्यों 10 घंटे लॉक किए हैं। मूविंग फॉरवर्ड वही सेम चीज है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है कि लीडर इज द वन हु हेल्प्स। एज आई मेंशन्ड रिगार्डिंग माय फादर, he was actually helping his family, he was actually helping his children, ताकि हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से बेहतर हो। तो he was a leader in his own way। जब भी बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो जो आपकी लाइन लेंथ आपके इमीडिएट बॉस के साथ सेट है, अपने टीम लीड के साथ सेट है, वही वर्जन ऑफ ट्रुथ ऊपर भी जाना चाहिए टिल द सीईओ लेवल। दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अगर आपके अंदर कहीं पर आपके कोलोफेल में तजाद है, आई एम सॉरी माय फ्रेंड, यू आर नॉट अ लीडर। अगेन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट एंड जस्टिस। इसमें एक जापानीज थ्योरी है। पाकिस्तान में बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली ग्रेजुएट्स, ये बात बड़े गौर से सुने। कंपनी ज्वाइन की, 3 महीने काम किया, स्पेशली जो जेन जी है, काम पसंद नहीं आया, उठ के दूसरी कंपनी में चले गए। फिर 3 महीने काम किया, उन्होंने 50, 60, 70 हज़ार रुपया ज्यादा दिए, उठ के उधर चले गए। तो यू बिकम अ जंपिंग फ्रॉग। 1 साल में आपने 3 स्विचेस मारे होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का डायलमा है कि अगर आप स्विचेस नहीं करेंगे, यू विल नॉट क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर। अब जापान में क्या होता है, अगर आप किसी का रेज्यूमे लेना जापान में, आपको हार्डली 1 या 2 कंपनीज मिलेंगी उसके 25-30 साल के कैरियर में। व्हाई? बिकॉज दे इन्वेस्ट इन देयर पीपल, दे इन्वेस्ट इन द वेल बीइंग ऑफ देयर पीपल। ये जो इधर का प्रेशर है ना, ये हर बंदा नहीं हैंडल कर सकता। अभी आप लोग, यू विल बी ग्रेजुएटिंग, when you will be in the market, then you will get to realize the points which I am trying to make. वो जो 25 सालों में उसने 1 या 2 कंपनियां बदली होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि यहाँ तो उसका कैरियर खत्म हो गया होता है या वो कंपनी बंद हो गई होती है। तो इसलिए Japanese and their loyalties with the company is because those people, the cultures, they are built for the people by the people. That is why जापान में अगर आप कहीं पर आपका वॉलेट गिर गया है, आप 2 घंटे बाद भी आपको उधर से मिलेगा, क्योंकि वहां पर इस तरह का कोई चक्कर है ही नहीं। पाकिस्तान में अगर आपका गिर जाए कहीं मोबाइल और आप उसको फोन करें, आगे से बंदा कहता है मैं क्यों दूं, जो करना कर लो, आके मैं तो नहीं देता। सो हम we criticize the politicians, we criticize the leadership, but change हमने खुद अपने अंदर लेके आना है। Moving forward, these are some of the numbers. Teradata employee satisfaction rate is 76%. Because we have an open policy, open culture, 100% ethics की हेल्पलाइन अवेलेबल है। अब आपको मजे की मैं एक बात बताऊं, ये मैंने लीव्स को यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। टेराडेटा में ये पॉलिसी है कि बाहर जो है वो लोग अपने पेट्स रखते हैं। किसी ने बिल्ली रखी हुई है, किसी ने कोई पपी पाला हुआ है, किसी ने तोता पाला हुआ है। अगर उसकी भी डेथ हो जाए ना, उस पपी की, यू गेट 3 to 5 days ऑफ। यस, आपकी बर्थडे है, यू गेट टाइम ऑफ। आपने कोई वॉलंटियरिंग का काम करना है, यू गेट बिलेबल टाइम ऑफ। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। पाकिस्तान की मेरा नहीं ख्याल किसी कंपनी में जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी होगी कि आपका कोई पेट मर जाए या फिर कोई मुर्गी मर जाए तो आप 3 दिन का शो बना रही हैं या 5 दिन का शो बना रहे हैं। बट दे डू बिकॉज दे ट्रस्ट। जब वहां पर कोई बंदा कोई लीव अपनी पुट करता है कि जी मेरा कुत्ता या मेरा पपी मर गया है, they trust the process because those principles are built on ethics and accountability. Moving forward, this is the main crux of leadership. Number 1, acknowledgement. Acknowledgement means, अब आपकी क्लास है, 2.1 वाले भी होंगे, 2.2 वाले भी होंगे, 3.8 वाले भी होंगे, 4 GPA वाले भी, सारे बच्चे बैठे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो 2.1 वाला बच्चा होता है ना, हम उसको बड़ा देखते हैं कि यार नहीं इसको ग्रुप पे नहीं रखना, नहीं इसको काम नहीं आता, तो ठीक है, वो बेचारा इधर उधर घूमता रहता है। एक्नॉलेजमेंट मीन्स कि अगर आपका छोटा सा इतना सा जरा भी आपकी आंख से चला जाए ना, वो आपको फिर अपना आप बताता है कि हाँ जी मैं एग्जिस्ट करता हूँ। दैट इज एक्नॉलेजमेंट। कि इवन इफ यू आर द स्मॉलेस्ट वन, यू रिकॉग्नाइज द पीपल कि यार तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम मौजूद हो, तुम्हारा एहसास है हमें। दिस इज एक्नॉलेजमेंट। द फर्स्ट बुनियादी
Usul of leadership. Then comes the appreciation. Appreciation is just like it serves as a catalyst for boosting your productivity. Then we talk about selfless love. ये बहुत जरूरी है. Selfless love, वो वाला love नहीं जो आप सोच रहे हैं. Selfless love. Selfless love का मतलब ये है कि चाहे मुझे तुमसे कोई फायदा है या नहीं है, नुकसान मैंने तुम्हारा फायदा करना ही करना है. अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते, किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो उस बंदे के लिए मुश्किलात भी खड़ी मत करें. सो दिस इज बेसिकली सेल्फलेस लव. पॉजिटिव फीडबैक, ये इसमें थोड़ा सा आप कह लें कि एक इमोशनल टच आ जाता है कि आप यू गिव ट्रांसपेरेंट फीडबैक. इस फीडबैक के ऊपर भी हम लोग अभी आएंगे. एंड देन इन द एंड यू हैव मेंटरिंग, कि अपनी जिंदगी में अब ये जो आपको मैंने सारी चीजें बताई, इन अ स्पैन ऑफ 5 years विद टेराडेटा आई गॉट 3 promotions. अब ये 3 promotions कैसे होगी? क्या मैं सारा दिन बॉस के साथ बैठा रहता था? क्या मैं बहुत काम करता था? क्या मैं सबसे अच्छा काम करता था? नहीं. वो इसलिए था कि आई न्यू कि यार आई नीड टू हैव अ मेंटर इन माय लाइफ. दैट कैन बी एनीवन. वो आपके अबू भी हो सकते हैं, वो आपका कोलीग भी हो सकता है, वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है. जेन्युइन मेंटरशिप जो उसने जिंदगी के 15-20 साल गुजारे हैं, जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो वो अपनी 15-20 साल की जर्नी आपको उन 3 से 4 सालों में करा देगा, अगर आपकी नीयत है करने की. वरना कोई फायदा नहीं है ऐसी मेंटरशिप का. Then this leadership, this mentoring, this selfless love, they are just the buzzwords for you. Going forward, accountability, the backbone of trust in technology. कोई बात है, गवर्नेंस की हमने बात की है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स की बात की है, ओवरऑल ग्लोबल के GDPR स्टैंडर्ड्स हैं, they are the rising regulatory pressures. This is the slide. This is what I was talking about, the TDKs activity. We conducted this activity. हमने कोई रमजान के पैकेजेस थे जो हमने बनाए थे. This is our main conference room. इसमें हर साल हमारे पास ग्रेजुएटिंग बैच आता है और हम उनको ट्रेन करते हैं, मेंटोर करते हैं, उनको प्रॉपर पढ़ाते हैं, उनको वो प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी वाली फील देते हैं कि कैसे आपने जो है इंडस्ट्री के अंदर काम करना है. मूविंग फॉरवर्ड, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ एथिकल फेलियर्स इन टेक, इस पे भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. विच इज डेटा ब्रीच क्राइसिस. फेसबुक का 533 मिलियन यूजर डेटा लीक हुए. इंटरनल अकाउंटेबिलिटी गैप्स हैं, जो हमने ऑफशोर्स वाली बात की, जो हमने वो लोड वाली बात की, जो हमने वो अहमद की एग्जांपल दी कि उसको फोन आता है, उसकी सारी डिटेल्स बताई जाती हैं. एंड देन वी हैव द सोशल जस्टिस इंपैरेटिव. एथिकल लीडरशिप मस्ट इंक्लूड डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन. अब फ्यूचर क्या एथिकल लीडरशिप का? एथिकल लीडरशिप ऐसे नहीं आती. एथिकल लीडरशिप उन 5-6 प्रिंसिपल्स पे आती है जो हम अभी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मेंटरिंग था, पॉजिटिव फीडबैक था, एक्नॉलेजमेंट था, एप्रिसिएशन था, एंड आपका फेवरेट सेल्फलेस लव था. ठीक है. अब हर आने वाली जो जनरेशन होती है ना, वो यूजुअली यही समझा जाता है कि पिछली जनरेशन से बेहतर होगी. लेकिन द लेटेस्ट सर्वे शोज कि जो जेन जी जनरेशन है उसकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी डिफरेंट है. दे वांट क्विक रिजल्ट्स. वो गली बाती है बस. रही सर का सब चैट जीपीटी, जेमिनी इन्होंने पूरी कर दी है. So the cognitive assessment या the cognitive ability is going towards the downslide of especially the Gen Z. That is also one of the leading factors के ethical leadership कहाँ पर fall करती है. Because a time will come, my managers will retire, I will retire, and you will be the one who will be leading the companies. Moving forward, आप में से कितने लोग इस बंदे को जानते हैं? Sorry? जाग रहे हो? ठीक है. He is Roger Federer. Tennis player. Yes, he's a tennis player, 20 times Grand Slam champion. Although he has 20 Grand Slams, his rivals Nadal and Djokovic, they have more numbers in terms of Grand Slam, but still he is regarded as the GOAT or the greatest of all time because of his ethics, accountability, and the way he played. So he was invited to Dartmouth to deliver a lecture to the graduating class. So let's see what Roger has to say on this part.
जी नहीं चल रही। सर आप बता दें, वी बिलीव यू। Tennis, perf- tennis, perfection is impossible. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. In other words, even top-ranked tennis players win barely more than half of the points they play. When you lose every second point on average, you learn not to dwell on every shot. You teach yourself to think, okay, I double faulted, it's only a point. Even a great shot, an overhead backhand smash, that too is just a point. So here's why I'm telling you this. When you're playing a point, it has to be the most important thing in the world, and it is. But when it's behind you, it's behind you. इस 20 से 30 सेकंड की क्लिप में हमें क्या एक वैल्यूएबल लेसन मिलता है? एनीवन? आपने वैसे भी एक्सप्लेन करना है आपके स्टेज पे, आप बता दो। सर एवरी सिंगल पॉइंट, एवरी सिंगल एब्सोल्यूट काउंट्स, मतलब वही ग्रेटेस्ट थिंग होती है, वही मतलब अगर आप उसको लूज करें तो वो भी एक बड़ी चीज़ है, और आप उसको गेन करें तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। एवरी स्मॉल लिटिल थिंग, एवरी स्मॉल लिटिल अचीवमेंट काउंट्स। बिल्कुल ठीक है, काफी हद तक इन्होंने ठीक बताया। हम अपनी जिंदगी में अक्सर छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके लेवल पर आके बात करूं तो एक एब्सोल्यूट ही तो है, दो एब्सोल्यूट ही तो है, यार एक ही तो है। छोटी छोटी चीजें कतरे कतरे से आपका दरिया बनेगा। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब बाराक ओबामा प्रेसिडेंट बना था यूएस का, तो पहली चीज उसने आके स्टेज पे ये कही थी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो एक क्लास में पढ़ा रहा था, ही वाज अ टीचर। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा कि आपका क्या विजन है, आप क्या बनना चाहते हैं? तो ही सेड आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। काफी लोग हंसे थे। तो जिस दिन वो बना प्रेसिडेंट, उसने फिर ये चीज बोली कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आप लोगों के लिए भी, यू गाइज आर ब्लेस्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एवरी स्मॉलर थिंग मैटर्स इन योर लाइफ। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज व्हेन यू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, they are going to hit back to you. Tennis, Moving forward, some things which I applied, and I like to show you those things as well. Skills थी, नौकरी मिल गई, हायर हो गए। उसके बाद कंसिस्टेंसी, the thing I mentioned कि एक साल में 3 जॉब्स बदली, नहीं करना ये आप लोगों ने। You need to spend some time. You need to go through that grind. वो आप जब वो चक्की में जब आटा हम पीसते हैं ना, उससे ही जाके फिर जो है वो आप रोटी तैयार करते हैं। और जो एक मुहावरा है कि हीरे को तराशते हैं, तो उसको जब हर जगह से उसकी डेंटिंग पेंटिंग होती है, तभी वो एक फाइन प्रोडक्ट निकलता है। ऑब्वियसली बात है, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं XYZ, उसके और आपके गोल्स दे शुड बी ऑन द सेम पेज। जब ये चीजें होंगी तो यू ऑटोमेटिकली बिकम लीडरशिप रेडी। उसके बाद वाली जर्नी है आपकी मेंटरशिप, आप कैसे लेते हैं, आपके कनेक्शंस। बिकॉज आपसे पहले ना, आपकी जब आप रेज्यूमे फेंकते हैं, किसी जगह पर अप्लाई करते हैं, योर रेप्यूट ट्रेवल्स फास्टर। यू गाइस आर यंग, अभी आप लोग पहली पहली जगह पर अप्लाई कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने इंटर्नशिप्स भी की होंगी। बट वंस यू स्पेंड 3, 4, 6, 7, 8 years in the industry ना, तो everyone gets to know you. So if any vacancy comes, तो irrespective of your resume, आपकी रेप्यूट, आपकी फीडबैक पहले पहुंची होगी वहां पर। वेरी लाइकली एंड वेरी हाईली लाइकली देयर इज अ चांस कि बहुत तगड़ा रिसोर्स होगा, बड़ा जबरदस्त रिसोर्स होगा, बट पॉलिश रिसोर्स होगा, बड़ा स्किलफुल रिसोर्स होगा। लेकिन अगर उसके अंदर वो डायलेमा नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो एथिक्स नहीं है, वो वैल्यूज नहीं है, नो वन इज गोइंग टू वर्क विद यू। तो ये चीज आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि यू नीड टू मेक श्योर कि you need to have an element of respect. उसी चीजों से फिर आपकी एक्सीलेंस आती है। अब अगर हम अपने नेबर कंट्री को देखें, इंडिया को, जितनी भी टेक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के सीईओज इंडियंस हैं। मेजॉरिटी, गूगल को उठा लें, इंडियन है।
पाकिस्तानी आपको नहीं मिलेगा। मुझे ख्याल है कि शायद मर्सिडीज बेंज का जो सीटीओ है, ही इज फ्रॉम कराची एनईडी यूनिवर्सिटी, एंड जो यम्स फूड है जो केएफसी की चेन है, उसका आई बिलीव जो चीफ ऑफिसर है वो ही इज आल्सो फ्रॉम एनईडी। आई ओनली रिकॉल दीज टू गाइज। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का उठा लें, गूगल का उठा लें, एडोबी का उठा लें, नोकिया का, यानी कि फिंगर गिनती पे अपनियां, एवरीवन इंडियंस आर देयर। तो वो एक आई बिलीव आप सबने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, कि जी एक्सेलेंस खुद पीछे आएगी, कामयाबी के पीछे ना भागो, वो खुद आएगी। तो वो बेसिकली इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर वो चीज बनी हुई है। सो इसी से ही फिर एक चीज स्टार्ट होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। आई नॉट एक्सप्लेन इमोशनल इंटेलिजेंस, आई लीव दिस टॉपिक टू यू। Go whenever you get the time, go and see what is emotional intelligence, what is motivation, what is empathy, what is self-regulation, social skills क्या हैं, self-awareness क्या है, because if you have a strong network in the company, in the society, very likely there is a chance कि वो आपको खुद ब खुद आपके connections आपको boost करेंगे। You will get a call one fine day, यार वो फलानी जगह पर vacancy आएगी, यार मुझे अपनी CV भेजो, मैं आपका process initiate करता हूँ। So that is where your connections comes to play the role। लेकिन उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, अपना एहतसाब आपने करना है। कोई क्या कर रहा है, क्यों क्या नहीं कर रहा, दैट डजंट मैटर। आप क्या कर रहे हैं, आपने किसको जवाब दे देना, अल्टीमेटली हम सब ने अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं। बात खत्म होगी उधर ही। आपका बॉस देख रहा है नहीं देख रहा, आपका मैनेजर देख रहा है नहीं देख रहा, यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट टू योरसेल्फ, तभी आप ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, आपको हो सकता है टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, लेकिन सूनर और लेटर किसी ना किसी पार्ट ऑफ लाइफ में आपको ऐसी ठोकर लगेगी कि यू विल फॉल बिहाइंड, वे बैक। सो की टेकअवेज आज के सेशन के क्या हैं? वन ऑफ माय मेंटर्स हु इज वर्किंग इन यूएसए, he was one of the youngest persons who got promoted to managing directors. He has worked with HSBC, he has worked with Citibank, he has worked with a lot of management companies at the level of CCO, managing director, vice president. So he is also one of my mentors. And also, there is also one of my mentors who I met in Telenor, who shaped my and reshaped my life. So key takeaways हमारे पास क्या? Integrity is your long-term currency. Skills get you hired. Character is going to determine that how far you are going to go. अगर आपका अपना character ठीक नहीं है, अगर आपके अपने अंदर जो है आपका दीन ईमान नहीं है, तो even if you become the boss of the company, जो आपके नीचे लोग होंगे ना, वो कभी आपको फॉलो नहीं करेंगे। One of my family members told me when he was serving as a government officer on 19th grade, नवाबी ठाट बड़े होते हैं सरकारी लोगों के। तो आपने बादाम भी छीलने हैं ना, या आपने मूंगफली भी छीलनी है, तो वो आपको बंदा छील के दे रहा होगा, सर ये ले। अभी वो बंदा छील ही रहा था, ये दिस इज अ रियल इंसिडेंट। तो वो जो अफसर था उसकी मौतली का नोटिस आ गया, उसने उधर ही मूंगफली छोड़ दी और उसने जेब में डाल ली। उसने कहा सर जाए, वाई? बिकॉज ही न्यू यार मैंने नौकरी बचानी है, या मैं नौकरी कर रहा हूं, मैंने इनको सलूट करना है। लेकिन आज अगर वो बंदा अपनी एथिकल बाउंड्रीज के साथ जुड़ा होता, उसका कैरेक्टर ठीक होता, तो जो उसके नीचे लोग भी है ना, वो उसकी उस डेजिग्नेशन की इज्जत ना करते, वो उसके उस बंदे की इज्जत करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कैरेक्टर दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड, दैट इज गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, योर डिग्री इज द फाउंडेशन ऑफ द फिनिश लाइन। द वर्ल्ड इज ओपन, एवरी डे यू गेट टू नो अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू थिंग्स। तो ये जस्ट डिग्री, जस्ट आपके लिए एक छोटा सा कैरियर ट्रेलर था। When you come into the corporate world, you will get to know that how many challenges are there. Own your decisions, accountability builds trust faster than perfection. Be a problem solver. Leader is the one जो के लोगों के मसले हल करता है at the cost of selfless love. अगर कोई मसला है, अगर let's say ऑफिस में कोई मसला होता है, अगर if someone approaches you or 2 to 3 people approaches you, क्योंकि उनको पता है यार कि हम इसको कोई भी चीज देंगे, ये हमारे मसले का हल निकाल देगा। सो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यू बिकम अ वेरी गुड प्रोग्रामर, यू बिकम एन एक्सीलेंट कोडर, नहीं। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, वैल्यूज शुड नॉट, एथिक्स विल डिफरेंशिएट इन एन एआई ड्रिवन वर्ल्ड।
As I discussed, we never knew, when I was doing the graduation, हमारे सर एक कोर्स होता था खाली AI का, जस्ट एक कोर्स होता था 3 क्रेडिट आवर्स का, हम लोग करते थे निकल जाते थे. अब पूरा AI का बैचलर्स प्रोग्राम है. तो थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी 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 फास्ट पेस. लेकिन द एथिक्स, द इंटेग्रिटी जो खुद एहतसाबी है, वो जब आप बिल्ड करेंगे. मुझसे अभी किसी ने, इनमें से किसी ने सवाल पूछा कि सर साइबर सिक्योरिटी का क्या स्कोप है आगे. तो आई टोल्ड देम कि चाहे आपने साइबर सिक्योरिटी की हो, चाहे आपने डेटा साइंस की हो, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस की हो, चाहे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, फील्ड्स तो चेंज होती रहेंगी. स्कोप फील्ड का नहीं होता माय डियर फेलोज. स्कोप बंदे का होता है, उसकी एथिक्स का होता है, उसके मॉरल्स का होता है, उसकी वैल्यूज का होता है, वो जो लेके अपने साथ चलता है, और वही उसके काम आती है. दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि आपकी रेप्यूट आपके रेज्यूमे से ज्यादा जल्दी ट्रैवल करती है इन द मार्केट. Build relationships, not just resumes. Networks create opportunities that knowledge alone cannot. Be comfortable, be uncomfortable. बड़ी जबरदस्त बात है. कंफर्ट जोन में नहीं आना. हर रोज, हर हफ्ते कोई ना कोई नई चीज सीखती रहनी है आपने. कॉर्पोरेट का एक रूल है कि you spend first 3 years in the company. If you see you are growing, if you see you are getting new work, you are working on new technologies, you stay for another 2 years, and then you see कि मैं उन 2 सालों में कहां पर खड़ा हुआ हूं. अगर फिर भी आपको ग्रोथ मिल रही है, fair enough. नहीं तो then it's the time to switch. बंदे को 3 से 5 सालों में पता चल जाता है कि यार वो एक ही काम बार बार करी जा रहा है. अब तो वैसे भी AI आ गई है, तो वो डेफिनेटली इन सारी चीजों को जो है ऑटोमेट कर देगी. If you are getting the promotion, you stay there for another 2 years. आपका वो 7 years का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. फिर 7 years के बाद, even if you are getting promotion or not, in Pakistan, it's time to switch. So you need to come out of your comfort zone. And last but not the least is controlling greed and fear. लालच नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी. मोस्टली बच्चे, ये मेरा बहुत से यूनिवर्सिटीज के साथ गिला भी है और एडवाइस भी है यूनिवर्सिटीज को. When I joined university, मेरे 3 F आए थे. I had like 1.7, 1.6 CGPA. उस टाइम तो मैं किसी को नहीं बताता था. अब मैं बड़े फखर से बताता हूँ. ये नहीं कि मैं जिधर खड़ा हुआ हूँ, ये वजह नहीं है. वजह ये है कि उस टाइम पे कोई समझाने वाला नहीं था. हमारा 300-350 का बैच था बच्चे जब आए थे 2015 में. आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे बैच रिंग हुआ, थोड़े लगे, करते मेरा ख्याल है 80 और 90 पीपल दे ग्रेजुएटेड ऑन टाइम. इसीलिए मैंने पहली चीज आप लोगों से क्या कही थी कि यू गाइस विल बी ग्रेजुएटिंग इन 2 to 3 months. वो बंदे जिनकी डिग्रियां टाइम पर है, किसी वजह से मैंने ये बात की थी. उसका रीजन ये है कि हम बच्चों में वो डर बिठा देते हैं, इतना खौफ बिठा देते हैं कि नंबर नहीं आएंगे, या जीपे गिर जाएगा तो ये हो जाएगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. वो बच्चा डर के मारे वो डिग्री छोड़ देता है, वो डिसिप्लिन छोड़ देता है, या वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चला जाता है जहाँ पे बिल्कुल चिल माहौल है. फास्ट इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. आई टेल यू वन थिंग, मैं खुद आई बीन हायरिंग पीपल, आई बीन टेकिंग इंटरव्यूज. ऑफ द रेकॉर्ड बात है कि जब फास्ट की सीवीज आती है ना, उनको साइड पे कर देते हैं. Because the quality of graduates, the रगड़ा they get, that is why, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बच्चे इंडस्ट्री रेडी हैं. लेकिन वो बच्चे जो बेचारे उस डर से उन्होंने अपने डिग्री प्रोग्राम चेंज कर लिए होते हैं, या किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए होते हैं, या कोई और कैरियर पाथ ले लिए होते हैं, उन बच्चों का क्या कसूर है? उनके लिए वन ऑफ द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप इज मेंटरशिप. उनको उस खौफ के डायनामा से आपने निकालना है. और कल को जब आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. आप ये बात याद रखें कि अगर आप अपने काम की इज्जत नहीं करेंगे, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो काम आपकी भी इज्जत नहीं करेगा. एंड कॉर्पोरेट में एक रूल है, आप लोग कहते हैं ना, पहले सेमेस्टर में ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बडी फॉर लाइफ, वो स्टेटस लग रही होती है, सब चीजें लग. 2 सेमेस्टर गुजरते हैं तो स्नेक निकला, ये ऐसे ही है वैसे ही है.
The same happens in corporate. कॉर्पोरेट में कोई बंदा आके आपकी वकालत नहीं करेगा, कोई बंदा आके ये नहीं कहेगा कि यार अहमद बहुत अच्छा काम करता है। आपका नाम क्या है? तयान। तयान तयान बहुत अच्छा काम करता है, तयान को ऊपर लेके आओ। दिस इज द रीजन व्हाई इन पाकिस्तान वी आर लैगिंग बिहाइंड। गोरों का कल्चर पता है क्या है? बाहर के मुल्कों में वो सिंपल एक काम में बात डाल देंगे। I think William is a very good candidate for this project. So how about we give this project to William? छोटी सी बात, to the point बात, precise बात। अब पाकिस्तान में जो है विलियम क्या ही बंदा है, इसको ऐसे कर वो लंबी चौड़ी ईमेल आएगी। You see the difference? To the point बात and give that opportunity to the right person. And in the end, as I said, that never fall in love with a woman and corporate। इसको जरूर रिसर्च करने जाके इसके लिटरल मीनिंग्स पे मत जाएं, इसके हिडन मीनिंग्स पे जाएं कि इसका क्या मतलब है, इससे क्या चीजें आप लोग अखज़ कर सकते हैं। बिकॉज इन कॉर्पोरेट इफ यू से कि यार ये मेरा कुलीग है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं, हर एक की जर्नी आपसे मुख्तलिफ है। नो वन इज गोइंग टू हैव एन एडवोकेसी फॉर यू। सो विद दिस I'll simply conclude my presentation and I'll simply walk you through one of the most interesting things. I know we are above time. So this is one of the PPTs I made back in 2021, 2022. For example, नयान आपने बताया था ना नाम, तयान, चलो तयान है जो भी है, अली रख लेते हैं फॉर एन इंस्टेंस मेरी आसानी के लिए। अली ने बहुत अच्छा काम किया, अली की हर जगह वाह वाह हो रही है, लेकिन अली की आवाज टॉप लीडरशिप पे कैसे जाएगी? क्योंकि नीचे एक एसोसिएट बैठा है, उसके ऊपर एक टीम लीड बैठा है, उसके ऊपर एक मैनेजर बैठा है, फिर सीनियर मैनेजर है, फिर डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, फिर वीपी है, फिर एसवीपी है, फिर ईवीपी है, देन सीईओ है, देन प्रेसिडेंट है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते हैं ना, योर ईमेल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अली उर्फ तयान दयान। So I'm just walking through you some of my achievements. Okay, everything needs to be documented over email. No long emails, to the point emails. अब ये चीज आपने अपने आप को recognize खुद करवानी है। Have a bi-weekly call with your managers. Have a bi-weekly conversation with your leaders. उनको बताएं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसको गुजारूंगा and I will appreciate अगर कोई इसकी पिक्चर ना ले, क्योंकि this is a confidential thing, internal emails. I'm just showing them not to brag off, but to tell you, to practically tell you with proof कि how you climb the corporate ladder in a shorter duration of time. ये सारी हाईलाइट हुई हुई है, तो जो भी ईमेल पढ़ेगा वो सबसे पहले देखेगा कि अच्छा ये इस डब्बे में कुछ लिखा हुआ है, वो ये नीचे चीजों को नहीं पढ़ेगा। Yeah, this is one of the tools Informatica, if you guys have heard. ये सारी फिर चूंकि हमारी सारी कम्युनिकेशन क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है। I was working with Jazz, उनकी सारी WhatsApp के ऊपर होती थी, which is not a good platform to be honest. Each and everything is documented, effectively documented. आज से पहले जब ये केस बना था तो people were not aware of how to write their quarterly cases. So me and my boss, we worked together. We made the guideline, we made the template, we made the framework कि कैसे आप अपने आप को uplift कर सकते हैं, अपने आप को present कर सकते हैं। And the thing goes on, ये shifts handover देना, seniors की respect करना, hierarchy को bypass नहीं करना, and go on. And along with that, ये वो चीजें हैं, it's a very long case. And along with this job, with these projects, which I was doing from 6 p.m. to 2 a.m. मेरे टाइम्स वो डिफरेंट था बिकॉज 24/7 की शिफ्ट थी। We also used to go to universities, नस्ट हम गए, फास्ट भी आए जॉब फेयर के ऊपर। We gave a lot of lectures on all these topics. So this is where your accountability starts. This is where your ethics start. This is where the leadership journey starts. So this is all. Now this is one of the sessions. Like अभी आप emails देख रहे हैं,
Like there were more than 700 plus people all across the Teradata जिनको हमने Teradata के अंदर, AWS के अंदर and cloud के अंदर जो है we trained them. So this is all about how you need to present. फिर लोगों को जब ट्रेन किया तो उनकी खुद ब खुद ईमेल्स आनी शुरू हो गई कि जी जो सेशंस हमने लिए थे हसन के साथ, यासिर के साथ, they proved to be very helpful. वो एक साइकिल चल पड़ता है. When you give back to the nature automatically gives it back to you. And आपकी automatically वो repute, वो recognition, वो ethics automatically develop होती जाती है. So इसी तरह we have the quarterly connects जिसपे हम more or less it's the same thing. So coming back to the slides, जो आज का जो आज की सबसे important चीज है जिसपे I'll end and then I'll ask that volunteer to come up on the stage because उसकी तब से नजरें गुड़ी बैग के ऊपर ही हैं, is your integrity. When you will enter the corporate world, आप एक लफ्ज़ सुनेंगे data integrity, quality of the data. जरा सा डेटा हिल जाता है ना आपका, जितनी मर्जी आपने अच्छी प्रोग्रामिंग लिखी हो, जितनी मर्जी आपने एरर हैंडलिंग के चेक्स लगाए हो, आपका हम टेक्निकल टर्म्स उसको कहते हैं बैच, आपका बैच फट जाएगा, बैच फेल हो जाएगा. तो इंटेग्रिटी जो है वो बहुत जरूरी है in order to survive in the technical world. So with that I'll conclude my today's session. So thank you all. You guys have been an amazing audience. So if we can have a quick survey on the last question, which was this one. So you can take out your mobile phones and you can record your responses. And you can come up on the stage, gentlemen. Give him a big round of applause. He volunteered. You will great job. आप इधर ही खड़े होकर बता दो बेशक. Hello. So to sum up this seminar in a few sentences, I would say that skills will land you a job, but to grow in that corporate ladder, you'll need integrity and work ethics. And जो सर ने highlight किया बार-बार, don't fall in love with women. Men are more loyal. And don't fall in love with a corporate. और बाकी गोरों से सीखना है जो कुछ भी था. So thank you जी, बहुत शुक्रिया. That's all from my side. If there are any questions, गोली बैग तो ले लो. सर इसकी बर्थडे इसका भी दे देते हैं. Most welcome. So since we are way above the time and I'm done with the session, so if anyone has any questions, so please. सर वालेकुम सलाम. सर आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन. जी जी सर प्लीज. आपने बीच में बात की थी कि मतलब लाइक जो पाकिस्तान में क्रिएट है कि पीपल्स आर शिफ्टिंग देयर जॉब्स अलॉट. ठीक है, एक मतलब लाइक 3 महीने एक जगह काम किया, 3 महीने दूसरी जगह काम किया. सर बट अगर हम पाकिस्तान की कल्चर की बात करें, कॉर्पोरेट कल्चर में, सर देयर इज हाईली एक्सप्लॉइटेड. मतलब फर्स्टली दे विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ एन अनपेड इंटर्नशिप एंड इवन फॉर द ग्रेजुएट्स दे विल आस्क यू कि लाइक आप 3 महीने हमारे पास अनपेड काम करें एंड देन वी विल hire you for a full-time role and depending on your performance and even जो salary rates भी हैं वो भी बहुत कम होंगे and इस तरह. So what do you think like इसमें company का क्या role play करता है and for kind of these types of role जो stereotype है एक as a student उसको आप किस तरह break कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है. इसको क्या हुआ? ये भी माइक भी घबरा गया. इतना मैंने हैवी सवाल पूछ दिया कि वो माइक ही बता सकूं. She asked a very good question कि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अनपेड काम देती हैं, 3 महीने काम कराती हैं, फिर कहती हैं जी नहीं आपका काम पसंद नहीं आया, आपकी वो दूसरी जगह पर जो है अपनी नौकरी देख लें. या तो आज का जो सारा लेक्चर था ना वो था ही इसके ऊपर, एथिक्स के ऊपर. ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सेंचर, टेराडेटा, all of these, जो एथिकल कंपनीज हैं, why do they survive in the market? And why do they have a good repute? Because they are based on those ethical and accountable standards which we discussed for the past 1 hour.
Coming back to your question, I totally agree कि जो 3 महीने का एक जो काम है वो अनपेड पहली बात तो नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, because that particular person is giving you her or his time, energy and efforts. So he or she must be rewarded in some ways or another way. Since we are all working to get compensated, तो compensation तो होनी चाहिए. लेकिन उसका एक फैक्टर ये भी है, when I was working in FAST as a TA, my teacher asked me to get you on a payroll. TA की भी एक होती है, मिनिमम से सैलरी होती है. I refused that. Why? Because teaching was at that time my passion. अभी भी पढ़ाता हूँ बच्चों को. उस टाइम पे the main objective was learn. LEARN. If you are going to run after money, money, आप जिस चीज के लिए जितनी स्ट्राइव करते हैं ना, वो चीज एक टाइम आता है आपसे उतनी दूर जाती है. You first build yourself. आप पहले अपना लोहा मनवाते हैं. You first learn, then you remove that L part, and then you earn. ये फिलॉसफी होती है. जहां तक कंपनीज की बात है, तो yes, I do agree कि they do exploit people, and unfortunately पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं, like 90% of the companies, I work with many corporates, वहां पर सबसे बड़ा जो गैप है वो कल्चर का गैप है. तो उसमें यही है कि we can try our level best to survive and maintain our own ethics, discipline and accountability. I hope that answers your question. Any other question? Yes. जी पूछे. Mike. Okay. This will be the last question because I think you guys have classes, so we need to wrap it up. मैं आपके पास आ जाता हूँ. जी बोल रहे हैं. I am in semester 2 currently, so I want to build a leadership. और मेरा fear of confidence है कि मैं स्टेज पे जाकर बोल सकूं, इसको ओवरकम करेगा. बड़ा अच्छा सवाल है. आप आओ इधर मेरे साथ. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप बताओ सबको अपने बारे में. वो आइए. Introduction. So consider these people. Please, I'll request you to maintain the decorum. Please. आप तसव्वुर ये करो कि यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ, कोई भी नहीं बैठा हुआ, और जो दिल में आता है, आप ये समझो कि मेरे सामने शीशा लगा हुआ है. आपने उस मोबाइल को देखना, वो समझो शीशा लगा हुआ है, और आपने बात करनी है, खुल के बात करनी है. फिर भी अंदर से दूसरा एक जैसे कहना जुनून खत्म हो जाता है कि बोलने के लिए आएगा. अंदर से वर्ड्स नहीं बाहर आएंगे. एक दफा करोगे, 2 दफा करोगे, 3 दफा करोगे, 4 दफा करोगे, वो एक फरवानी आ जाएगी. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. अभी आज इतने बड़े ऑडियंस के साथ बैठे हो, सामने खड़े हो, कुछ भी बोलो. यू कैन स्पीक एनीथिंग. अपने बारे में बता दो कि व्हाट इज योर नेम, क्या खाने में क्या पसंद है. चलो मैं पूछता हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहमान चौधरी. ओके. कहाँ से ताल्लुक है आपका? I am from कसूर. ओके. तो किस सेमेस्टर में हो आप? सेमेस्टर 2 एससी डिपार्टमेंट. क्या हॉबीज हैं आपकी? कुछ तो होगी, किताबें पढ़ना. Then I would suggest you to have a hobby of reading books. That will improve you a lot. When I joined Teradata, तो एक चीज मैं बतानी भूल गया. एक क्लब है टोस्ट मास्टर्स के नाम से. उसमें वो यही सिखाते हैं, पहले आपको स्पीच देते हैं, इट्स एन आइस ब्रेकिंग सेशन. उसमें आपकी अंग्रेजी टूटी हुई है, वॉज वर्क का कोई समझ नहीं आ रहा किधर लग रहा है, बट दे आस्क यू टू स्पीक. बोलो, गलत बोल रहे हैं वो आपको टाइम ड्यूरेशन देते हैं 1 से 2 मिनट. उसमें चाहे आप उसमें स्टैमर कर रहे हैं या चाहे आप उसमें अटक रहे हैं, बोल रहे हैं, एक टाइम आता है कि वो आपकी जुबान पे वो फरावानी स्टार्ट हो जाती है. तो उसके लिए फर्स्ट यू नीड टू लिसन मोर, यू नीड टू रीड मोर. तो ऑटोमेटिकली आपका ये डायनामिक हो जाएगा.
This is how I fix myself. सर मेरा ये थी कि मैं उस एरिया से हूँ जहाँ दूसरा कह दें कि एक बुक्स दी जाती है, हमारा माइंडसेट ये बनाया जाता है कि ये बुक्स है, इसमें से पेपर आना है बोर्ड का, तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, ना कि दूसरा फिजिकली कोई आपको ऑन द स्टेज जाके प्रैक्टिस करना है। तो हम जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को हम ये लैंग्वेज है, तो हम इसको लैंग्वेज कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं इस क्वेश्चन का ये पास पेपर है, इसका आंसर ये होगा, तो हम उसी लेवल के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये कि अगर मैं स्टेज पे जाके बोलना भी चाहूँ तो इंग्लिश में तो मैं कह रहा हूँ 0%, उर्दू में भी नहीं कर सकता, क्योंकि उर्दू में एक वो भी लैंग्वेज हमने ये ठीक है, कोई मसला नहीं. कि ये चीज़ है, ये क्लासें इससे बढ़ रही। Again, the point is English is just a language barrier. Urdu is just a language. ठीक है, जिससे आपने लोगों से खिताब करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है. Point is कि उस लैंग्वेज के पीछे का जो इमोशन है ना, या जो हिडन मैसेज है, वो लोगों तक जाना चाहिए. जो आप बात कर रहे हो, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप कि जिस एरिया से आप बिलोंग कर रहे हो वहाँ पर उस तरह का नहीं एक्सपोजर. लेकिन जितनी दुनिया इस वक्त एडवांस हो चुकी है, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू. देयर इज अ रीनोन जर्नलिस्ट तलत हुसैन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा. तलत हुसैन एंड माय फादर दे यूज्ड टू लिव इन द सेम स्ट्रीट, वो एक मोहल्ले में रहते थे. उस जमाने में आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डिबेट कि तलत अच्छा बंदा है नहीं है, कैसा जर्नलिस्ट है, वो इट्स अ सेपरेट थिंग. द गुड पार्ट इज कि उस टाइम पे ये ना इंटरनेट होता था, ना यूट्यूब होती थी, ना ये कुछ भी नहीं था. उस जमाने की लाइब्रेरी की कोई ऐसी किताब नहीं थी जो तलत ने ना पढ़ी. आज आप उसकी जाके स्पीचेस देखें कैसी फरवानी के साथ बोलते. तो डेवलप अ हॉबी, हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, प्रे टू अल्लाह, इंशाल्लाह दिस थिंग विल गो ऑन. अभी आप स्टेज पे आए, कॉन्फिडेंस बहाल हुए, थोड़ा सा रिलैक्स फील किए, इस तरह आते रहो और आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा. थैंक यू जी. Well, thank you, Sir Hassan, for such an inspiring and thoughtful, provoking session. Today, we learned something powerful. Technology builds systems, but ethics builds trust. Skills build careers, but leadership builds legacy. Let's not aim to be just successful professionals. Let's aim to be ethical leaders. Thank you for your presence and energy. Now I would like to call Ma'am Amna Siddiqui and Arsalan Aslam to come to stage and give Mr. Hassan Ajam a shield. Now, before concluding the session, I would like to say, goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. They simply mean, I will miss you. इस बात पे मैम आपने इसको 2 एब्सोल्यूट एक्स्ट्रा दे. गुड यूज ऑफ चैट जीपीटी. अभी तो आप खुद लिख के लाना. अच्छा ठीक है, वेरी गुड. थैंक यू एवरीवन. यू गाइस हैव बीन एन अमेजिंग ऑडियंस. दूसरी साइड से निकल जा.